Good morning, everyone. Am I audible? Okay. Karan, please make me the presenter. Thank you, Karan. Okay. So I hope everyone is having these PPT, decision tree, random forest, bagging, bootstrapping. सबके पास है. Plus, last week I have also shared couple of data set. So did you all get them? काफी सारे I've shared onto the mail. Did you get everyone? So those are your for your practices. Just pick them and start working. Can you take doubts? Hanji, why to at the end of the class? I भी ले लेते हैं. Hanji, बताइए what doubts when you might have done your hands on? What doubts did you face? Okay, on CAPS data set. So what is the doubt, Komal? बताइए. You can turn on your mic, Komal, and say typing takes too long. Is encoding dummy variable are needed to be done for tree-based algorithm? Dummy variable have nothing to do with algorithms. Why do we do dummy, Anusha? हम dummy क्यों बनाते हैं? What is the purpose of making dummy variables? To convert categorical to numerical. बिल्कुल ठीक है. तो उसका it is irrespective of your algorithm. चाहे आप tree based लो, कुछ भी लो, it has nothing to do with your algorithm. वो आपका डेटा को proper structure में लेके आने वाली चीज है. Once it is in proper structure, it will be accepted by all the algorithms. ठीक है अनुषा? ROC AUC ये आपके R में हुआ तो था. I think it was explained into your R. ROC AUC curve. It is for classification problems. Is it not clear जब आपका R में हुआ ROC AUC? Okay, I'll explain it then. It was not covered. Because concept वही है, प्रोग्राम लिखने का तरीका अलग है, concept वही है ROC AUC का. चलो ठीक है, I'll explain it. Okay. Akash, index 1154 is out of bound for index 0 with size 1. इसमें out of bound का मतलब क्या होता है आकाश? Out of bound का मतलब क्या होता है? Yes, out of range. Clustering से what you were trying to find out, Akash? Like what were you trying to analyze by clustering?
Okay, you have mailed me your you have data set and along with that code. Okay. Okay. How many of you have done on how many of you have worked on CabRide data set? आकाश आपने किया है, कोमल आपने किया है, और किन्होंने किया है CabRide data set पे? आपने भी किया, अनुषा, आकाश, सरोहा, अंशुल, हार्दिक, नवीन, प्रेम. Have you done? You haven't done, Prem. Naveen, Napini, Anshul. Okay. तो नो. तो जब आप तीनों ने किया, what did you analyze? Is it a cab company data set या वो किनका डेटा है? Is it a cab data set? Is it multiple customers? या किस तरह का डेटा है? When you had a look. What about आपके? What are your reviews about it, Komal and Anusha? Is it a single person data? Is it a cab company data? Or what it is? Let me open the data set as well. Business, personal, commuters, cab company, maybe. No, all of you are wrong. All of you are wrong. आपने डेटा को देखा ही नहीं फिर ढंग से. आपने देखा नहीं उसको ढंग से. Eyeballing is important. Just give me a second. That does not belong to a cab company. Give me a second. Let me just open the data set. Akash, data kholo. I'm opening the data only. Just give me a second. Let me share the screen. Okay. So let's have a look at the data here. Yeah, I'm talking about cab ride only. सबसे पहली चीज जो आपने देखनी थी वही आपने you did not catch that thing. तो आपका complete EDF गल. I wanted you all to figure it out by just eyeballing, लेकिन आपने नहीं किया. Okay. तो just look at these initial 10 to 15 records. Everyone, जिन्होंने नहीं किया, you also look onto them. So what do you think? What do you find in here? Let me put these values in center. Do you find is it cab company का data set है, क्या है? Have a look onto it, everyone. Don't go on the name. Look onto what it is into. इसमें क्या है? These are our columns. इसमें हमारे पास है start date, start कब हुई राइड, end कब हुई राइड, किस कैटेगरी में वो राइड पार्क की गई, स्टार्ट पोजीशन, स्टार्टिंग प्लेस, एंडिंग प्लेस, राइड कहाँ खत्म हुई, कितना डिस्टेंस कवर किया, एंड ओवरऑल पर्पस क्या था. सो कैटेगरी में आपकी दो कैटेगरीज है यहाँ पे, बिजनेस एंड पर्सनल. उस कैटेगरी के अंदर बिजनेस था तो कौन सा व्हाट इज अ सब कैटेगरी, तो पर्पस इज अ सब कैटेगरी ऑफ कैटेगरी. ये आपका लोकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस है, ये स्टार्ट डेट एंड टाइम, ये एंड डेट एंड टाइम. सो जस्ट हैव अ लुक एवरीवन एंड आई वांट ओपिनियन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ये किसका डेटा है? इज इट अ कैब डेटा? इज इट लाइक क्या, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज अबाउट? ये क्या बता रहा है? I want answers from everyone. जिन्होंने नहीं भी किया, open the data set here. From where are people taking cabs? For what purpose? No, my question is different. My question is different. Arzu, I'm asking, as the name says, ये cab rides है. So, is it about multiple people?
I'm asking just one question, everyone. I'm not asking what they are. I'm not asking what these tell. I'm asking, मेरा question सिर्फ एक है. Is it multiple customer data set or is it a single customer data set? No, wrong, Prem. Okay, what about you, Akash? What about others? Okay, multiple. Naveen, what are your assumptions onto this one? Not assumption, look onto the data and tell me. Arzu, Hardik? See, but when you see here, what is the starting time here? Same date. So chalo, let's think about date. This is first month. First month पे लेते हैं and we just look around अभी तो एक entry. Let me just take for day number 6. Day number 6 की entries लेते हैं. ठीक है? What do you think here? January 1st, 2016, what was the start time? 2:42. And what was the ending time of the cab? 3:49. ठीक है? Respectively, it is increasing. 2:42 he took the cab. 3:49 the cab ride ended. उसके बाद same day, what is the next timing? 5:15. मतलब sequential है, right? 2:42 से 3, almost an hour drive. यहाँ पे 1 hour की drive हुई. He landed somewhere, he stopped somewhere. Then second time cab कब ली? 5:15. Stopped at 5:19. Only कितने मिनट की drive? 4 minutes drive. Then 5 के बाद कितना लिया सीधा? 5:30. And next drive कितनी? 5 मिनट की. उसके बाद do we have anything else? No. Do we have anything prior to that? No. ऐसे ही 10. Let's take about 10 also. What is the start time? 8 to 5 in the morning. 25 मिनट की राइड ली. Then 8:25 के बाद 12:17. खत्म कितने पे किया? 12:44. 15-20 मिनट की राइड. फिर 3 बजे 3:51. Almost an hour. Then शाम के 6 बजे. It is into increasing order. Do you see any overlap happening here? अगर कैब कंपनी होती, like you know, if it was a cab organization, cab company में you will have multiple rides having on to the same time. होगा ना ऐसा इंस्टेंस? Just if इन तीनों को देखो, just ना have a eyeballing onto them. Will you will we have single entries if it was a cab company? Or if it was multiple customers, and wo bhi nowhere you will not find any time overlapping. You can just scroll down anywhere, just say coming on to 12. What is the start time on to 12? 12:33. 12:49 पे खत्म हुआ. इंक्रीजिंग ही मिलेगा. 12:53 पे आफ्टर couple of minutes he took the cab again. 1 बजे खत्म किया. Then 2:42, 2:56. Increasing order. He's proceeding into the day. He started his day at 12:33. He ended as his day at 5:00, just 5 p.m. You scroll कहीं भी आप, just scroll anywhere into this data. Take a single date. And एक ही डेट की आपको सिर्फ गिनते के इंस्टेंस मिलेंगे, and that too into increasing order. Although these are having, and this maybe you will find out, what did you find out into this start and stop point? What are the things into this start and stop point? ये चीज क्लियर हुई आपको? That is it. This is a single person data. Let's say talking about day number 11 here, second month, day number 11. शाम के 4:28 शुरू किया, 5:10 पे खत्म किया. उसी दिन 5:49 पे शुरू किया, फिर 6. He started his day at what time? 6:28. Started his day at 6:28 for 11th of February. Ended his day at what? 8:51. उस दिन इसने सब क्या किया? सबको किसमें पुटअप कर दिया? कैटेगरी में. Places he visited on to 2nd of Feb was 11th of Feb was. इन्होंने कैरी से शुरू किया, the starting position, ended at कैरी. तो these were, ये उनकी क्या है? Meanwhile जो उनका काम था, he went to these places and he started and stopped on the same place. And these are the total number of miles for a single day.
Got the point? For example, talking about 12th date, he started from carry again. 12 तारीख को फिर से carry से शुरू किया. Let me erase it. So these are 12 and these are for the entries for the 12th date. कब शुरू किया? Carry से शुरू किया and कहाँ पे खत्म किया? Carry पे. So these are 12th of February. Similarly, talking about 14th of February, कहाँ से शुरू किया? Started from Jackson Heights, जहां उन्होंने, you see, there is an order. 12 तारीख को where did he ended up? Carry में इन्होंने end up किया. Then 13 तारीख को कहाँ से शुरू किया? Carry पे. 13 तारीख को end up कहाँ किया? Jackson Heights पे. 14th को कहाँ से शुरू किया? Jackson Heights पे. End कहाँ किया 14th को? Long Island City. And 15th को इन्होंने नहीं कुछ काम किया. He was on to off. 16th को कहाँ से resume किया? The same place where he ended. Jackson Heights, sorry, Long Island. Similarly 12 को उन्होंने कैरी से शुरू किया था क्योंकि उन्होंने 11 तारीख को कहाँ पे एंड किया था? कैरी पे, राइट? उसी दिन. These are all entries for 11. Sorry, this one is for 11. You see, from where he is stopping, next day he is starting from the same place. 9 की एंट्रीज कहाँ से कहाँ तक है? 9 को इन्होंने व्हाइट ब्रिज से शुरू किया क्योंकि 8 को इन्होंने कहाँ पे एंड किया था? व्हाइट ब्रिज पे. और 9 को एंड कहाँ इन्होंने किया? कैरी पे. Is everyone getting this one? व्हाइट ब्रिज पे 8 तारीख को खत्म किया. 9 को व्हाइट ब्रिज से शुरू किया. 9 को फिर कहाँ पे खत्म किया इन्होंने? कैरी पे. एंड फिर 10 को कैरी से शुरू किया. Sorry, this is 11. 10th को he was on off. 10th को भी he did not work. Carry के बाद he ended up onto carry. Next day he started from same position. He ended onto the same city, same location, and then he went to what? On 12th, he ended up again at carry. उनका कई दिन carry में गए. He started onto carry again. See, ended उन्होंने यहाँ पे क्या? Not here, exactly here. And then he ended up onto 13th. Where? Jackson Heights. Jackson Heights next day वहीं से शुरू किया. And then Long Island he ended up, and then he started from Long Island again. And 16th को आप देखोगे he went to Colombo, he went to Sri Lanka, and then he started from Sri Lanka. There is no overlapping happening onto the start and stop place. There is no overlapping happening onto the time. Nowhere. Neither onto the start place, neither onto the stop place. So you always need to eyeball the data first before looking and then starting the ADA part. एक बार उसको उस पे नजर डालो कि क्या है. couple of 10-15 records को ध्यान से समझो. ठीक है? इसमें what do you find? This person is into multiple countries. How many of you came to that analysis? ये multiple countries में भी visit किया इस person ने. What all countries this person has visited? Anshul, no sorry, Anusha, Komal and Akash. You tell me. आप तीनों ने ADA किया इस पे. Which all places this person has visited? Places तो रहने देते, country. He has visited to US, Sri Lanka and Pakistan. ठीक है? ये 3 जगह गए हैं. And उन 3 जगह में भी you will not have any overlapping entries happening. आपको वहीं पे record ही मिलेगा as it is. Plus into that you will see that ना some days this person do not work. जैसे यहाँ पे 11th के बाद 12th, 13th and then he did not work on to 15th. 14th, 15th इनका off था. 15th of Feb इनका off था. Similarly 10th of Feb इनका off था. After 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21 he's working. 22 he was on to 22 baby. He just have a single ride on 22 from Morseville to Cary, 8 miles. 23rd he was on to off on 23rd. So only 22 he was working. 2nd February he was working. Multiple locations. This time, and you see, you have such kind of strings as well. So you need to treat them. Question mark. Replace functionality. They are Pakistan entries. They are Pakistan entries. Somewhere you have unknown location. Somewhere both the locations will be unknown. कहीं पे start point unknown है, कहीं पे stop point unknown है.
you will have some strings like this, so you need to treat them. And this is now आपका, you see, when you got to know, आप initially क्या assume करके चल रहे थे, it was a cab ride data set. Now you got to know this is one single person data set. तो जो आपका questions थे ADA की, कैब कब busy होती है, maximum peak hours, हाँ, आपने क्या क्या, what did questions you tried to ask using ADA, आपके क्या क्या questions थे, what did you find up, can you put your questions into the chat window कि आपने ADA से क्या क्या निकाला, what analysis did you come up with from that ADA? Anusha, Komal and Akash, the very first thing, what did you came up from that ADA? आपने क्या insight निकाली वहां से? Type of purpose, number of ride associated with each purpose. ठीक है, this is it can be applicable on to the single person also, चलेगा. What else did you find out, everyone? 3 of you, आप तीनों ने काम किया. For which purpose more miles? ठीक है, purpose with respect to miles. आकाश, आप भी बताओ. And what else? Yeah, उसमें dominating है. That data has, only very few instances of personal record. सभी उसने business category में डाला हुआ है. आकाश, what did you came up with this data? आपने EDA किया, what did you come up with this data? Purpose with respect to month, right duration with respect to place, ठीक है. Commute, cab, covered distance. Distance तो already दिया हुआ है आकाश, यहाँ पे distance is already given here. Miles is already given. मैक्सिमम डिस्टेंस, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस का निकालने का फायदा क्या? कैब कवर्ड डिस्टेंस मोस्ट, मुझे नहीं समझ में आया आकाश आप क्या कह रहे हैं. माइल्स वर्सेस मंथ, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा एनालिसिस है कोमल. किस मंथ में सबसे ज्यादा ट्रैवल किया, नंबर ऑफ माइल्स ट्रैवल्ड. व्हाट एल्स डिड यू कम अप विद इनटू दिस EDA? आकाश, आप मुझे बता सकते हो, मुझे आपका पॉइंट समझ में नहीं आया. कम्यूट, कैब, कवर्ड डिस्टेंस मोस्ट. You could take some, Komal, इसमें you could take sum of miles with respect to month. You will have to work on to date time column now, क्योंकि इसमें आपको use they are I think they are not in the form of date time, string की form में है. You need to convert them to date time format. तो हमारे पास pandas में होता है PD to date time. एक सेकेंड में यहाँ दिखा देती हूँ. We have PD to date time into pandas. So you will need that pandas. You have to explore in that case, because कुछ चीजें मिलेंगी आपको जो आपने फिर सेल्फ लर्निंग से करनी पड़ेंगी. So you'll have to use this PD to date time, and then इसमें what you'll get is yes Komal, just give me a second, let me discuss, then I'll come to yours. Then into this what you will get is in here you can get to know ये तो डेट टाइम में कन्वर्ट किया. आफ्टर दैट you can fetch date, you can fetch time, you can fetch month. So you just that's your homework. You will have to do your own research. How do you do it? If you are not able to, then I will help you out. लेकिन पहले खुद से help करो. Everyone. From this data, convert it to date time. आप नए column create करो. This comes out to be feature engineering की from the given data, you are making a new month column. You although 2016 का data तो उसके लिए point नहीं बनेगा. Make a new date column. Make a new month column, make a new time window column. Start time कब था, stop time कब था, starting month कौन सा था. month is क्योंकि single person है, daily basis data है, तो start month stop month will not make any sense. तो month column will make a sense. day का भी एक ही रहना क्योंकि single date कभी उन्होंने across the day travel नहीं किया. Maybe I think he has traveled across days as well, कि उन्होंने
10th को शुरू किया, he stopped on to the 12th. Just have a look onto this thing. अगर ऐसा है, then you will have to start with days, start date and end date. Okay. So you will have to come up with multiple columns from this single date value. You have to come for a month column, you have to come for a date column, you have to come for a time column कि कौन सा hour था, was it 9 into the evening or 9 into the morning. हाँ जी, you could use this time delta. अब multiple ways हैं, you could use any. You could use any. End goal should be you should have proper month column segregated. You should have proper time column segregated. Have your week, day, your month, your hour, your year up. You should have everything. You have to generate that. Okay. Can I use any other plot to visualize the data miles versus write duration? Hanji, both are continuous value, write duration. How do you get the write duration, Anusha? You will have to find out. पहले आपने write duration निकालनी पड़ेगी. आपके पास distance covered है, total miles covered. How do you get the write duration? Everyone, how will you get the write duration? Date. You will have to find out the hour, the minute, start stop minute, that is ending minute and starting minute. क्योंकि यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 9, 9, 17, तो you will have to work on 2 minutes here. Minute पे काम करके you need to convert it. Yeah, ठीक है, दोनों का difference and then you can, क्योंकि दोनों क्या हो गई now continuous values, तो you can plot them. Yeah, you will get in minute. So you can plot them. Seaborn में multiple plots है for continuous. Scatter will not give you much insight, I guess. हाँ जी अनुषा, हमने सीबॉर्न किया. देर आर मल्टीपल कॉन्टिन्यूस प्लॉट्स, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, कॉन्टिन्यूस डेटा. वी हैव कॉन्टिन्यूस डेटा ऑन टू दिस कैटेगरी. तो continuous, have a look onto the continuous plot. What all plots are you can go for continuous data. You can go for histogram, you can go for KD. A distribution plot is the best one. It could be this type, trip की duration क्या थी and total miles. So you could do this way. You can have a distribution plot जो आपको ज़्यादा insights देगा compared to a scatter plot. So explore what all kind of plots you have and then find out which should I go with. What all insights can be generated from this one, everyone? What all can you find out? Put up the questions. What can, अगर आपके पास ये data, what else you want to find out? We have, अभी हमारे पास we had a discussion on to कि हम क्या कर सकते हैं. Miles with respect to time, कि कितना time लगा, what are the buckets, or not even say buckets, miles with respect to time, most traveled destinations. Yes. Total distance covered in month, yes. How much distance has been covered into a month? ठीक है. What are the peak hours? Day of the week versus purpose. Purpose में there is lot of missing value. आकाश, आपने इसमें देखा होगा 40, more than 40% of the data is missing. So into this case, purpose is highly imbalanced. So how did you, आपने कैसे treat किया आकाश इसको? Interpolating as in मतलब what did you do?
Mm-hmm. ओ, आई नो इंटरपोलेशन मेथड, लेकिन उसमें भी तो कुछ यूज हुआ होगा आकाश। मतलब उसमें क्या यूज किया, व्हाट डिड यू कम अप विद फाइनल आंसर में, आप जो मिसिंग वैल्यू थी वहां पे क्या आया? इंटरपोलेशन टेक्निक बोल देते हैं, बट उसमें भी तो कुछ वैल्यू आपने दी होगी। What else are all of you? What can be filled up here? Your suggestions, I want to know. Forward filling can be, ठीक है। Other, see इस केस में दो चीज हो सकती है, because when you try to find out, पहले approach should be we could not take any more since many null values if filled with some proportion of the existing data, ठीक है। इसमें ना what is happening here, when you will try to find out the कि हाउ दिस पर्पस इज रिलेटेड टू योर कैटेगरी, क्योंकि ये सब उसका पार्ट है। तो कैटेगरी में भी व्हेन यू सी हियर, कैटेगरी हैज ओनली टू एंट्रीज, आपको यहाँ पे भी वो मिलेगा। देयर इज ऑल्सो बायसनेस ऑन टू द कैटेगरी पार्ट, ऑन टू दिस कैटेगरी यू जस्ट हैव टू थिंग्स। कैटेगरी में यू हैव व्हाट इज बिजनेस एंड पर्सनल, डोमिनेशन आपका मेजर डेटा बिजनेस का है। And into this case, इस वजह से whenever you try to fill it, when you try to get it from the category purpose, तो आपको मोस्टली बिजनेस में मिलेंगी। आपको गिनती की चीज जैसे चैरिटी है और एक दो चीज है, दे यू विल ओनली गेट देम अंडर योर बिजनेस पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल कम्यूट, पर्सनल कैटेगरी। तो उस केस में यू कुड डू इट दैट वे कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम अकरिंग, इसमें मैक्सिमम अकरिंग इज मीटिंग, तो या तो आप मीटिंग से इनको ट्रीट कर दो, बट देन इट विल क्रिएट हाईली इम्बैलेंस फॉर मीटिंग एज वेल। और व्हाट यू कुड डू इज, into realistic scenario what we do not do it ourselves, हम we give our suggestions कि एक तो इसमें we could go for meeting, ठीक है। दूसरा what we can do is we can fill our own category कि या तो other लिख दीजिए, other है, या फिर not disclosed, नोट डिस्क्लोज करके, एंड देन जिनका भी ये डेटा है, लेट्स से इफ दिस वाज अ डेटा फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, वी विल गिव देम कि हमारी ये अप्रोचेस हैं, आपकी इतनी मिसिंग वैल्यूज हैं, एंड इसमें कोई रिलेवेशन, कोई भी देयर इज नो सॉर्ट ऑफ लिंक विद द कैटेगरी, देयर इज नथिंग सच कमिंग अप, ये भी बायस्ड है। तो वी जस्ट हैविंग दीज टू अप्रोचेस कि हम मिसिंग को या तो मीटिंग से हटाएं, या अदर से हटाएं, या नॉट डिस्क्लोज करके हटाएं। तो लेट देम, बिकॉज डेटा उनका है, उनका बिजनेस है, तो विद दे डोंट वांट कि जो ना उनके बिजनेस का सिनारियो चेंज हो, राइट। क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दूं हैविंग गोइंग फॉर अ डिनर, मैं अपनी तरफ से रैंडमली गोइंग फॉर अ डिनर, गोइंग फॉर अ मूवी, लेकिन उनके बिजनेस सिनारियो में वो है ही नहीं इंस्टांस, तो दैट विल बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस केस में व्हाट वी डू इज, या तो हम मैक्सिमम मोड से हटा देंगे, और आई वुड से वी कैन रिप्लेस इट विद कि अदर है, एंड देन वी जस्ट पुट देम कि नॉट डिस्क्लोज्ड, कि ये चीज है, एंड यू जस्ट टेल मी नाउ व्हाट इज गुड एज पर योर बिजनेस सिनेरियो, वी गिव इट टू द क्लाइंट एंड लेट देम डिसाइड। सो वट एवर दे से कि कि चलो ठीक है, एज पर आवर बिजनेस दिस इज फाइन, नॉट डिस्क्लोज इज फाइन, डोंट गो फॉर मीटिंग और डोंट गो फॉर अदर, नॉट डिस्क्लोज इज कम्प्लीटली गुड, तो हम नॉट डिस्क्लोज कर देंगे। तो इस केस में हम राइट अवे हम खुद से सोल्यूशन नहीं लेंगे, वी हैव अ डिस्कशन, जिनका रियलिस्टिक सिनेरियो में जिन जिन जिस भी क्लाइंट का डेटा होता है, वी राइट अवे डोंट चेंज द डेटा, गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे मीटिंग आपका मेजर डोमिनेटिंग है तो नहीं करेंगे, तो यू कुड गो फॉर अदर, और यू कुड गो फॉर नॉट डिस्क्लोज्ड, एंड also you could go for maximum occurring, that is meeting instance. Is this point clear to everyone? ठीक है। Also what you could find in here is you will have many unknown locations. Also what you could find out, what are the peak hours, peak hours निकाल सकते हो, peak hours कैसे निकालोगे इसमें? How can we use KNN for treating missing values? Who's
Why will you use KNN for treating missing values, Akash? आप कर सकते हो KNN, but what is your approach? What is your approach to use KNN to, मतलब what is the process flow will you opt? पहले मिसिंग वैल्यूज जा सकती हैं, ट्रीट कर सकते हैं, बट व्हाट अप्रोच यू विल फॉलो? वहां तक पहुंचोगे कैसे? आई वांट टू नो. Like what is the process, what is the how you are thinking it that way कि KNN for treating values? Okay, so it is not mandatory कि you will always use KNN. No. KNN क्या है आपका? What is your KNN? It is an algo, right? Algo से क्या होती है? What is happening through algo? Predictions. तो KNN cannot be used for your missing value treatment. It will be always used for predictions. So did you get it? मैंने अब आपको कुछ चीज point out की है. So how can you treat these missing values now? Correct, प्रेम. So जो आपका डेटा है segregate कर लोगे, ठीक है? Missing values will be your new test data. उनके लिए you will use the algo, जो given data है उस पर training करोगे. You will use this as what? Your training data. Missing values को segregate किया तो target नहीं है, so that comes out to be your testing data. And then using your trained model, you will do predictions for these missing values. And जब predictions हो जाए, you can club it together. That comes out to be your complete data where you don't have missing value. No, Akash. Algorithm का काम है prediction करना. Algorithm का काम missing value treat करना नहीं है. Algorithm is only used for predictions. तो वो उस सेंस में जहां पे आपने पढ़ा, वो उस सेंस में बोला गया है कि आपने डेटा को सेग्रीगेट किया, मिसिंग को अलग से बना लिया. और मिसिंग क्या है? आपका टारगेट मिसिंग है, या फिर आप पर्पस आपका क्या हो जाएगा? टारगेट कॉलम, कैटेगोरिकल कॉलम. ठीक है, ये आपका टारगेट जहां पे मिसिंग है वो अनसीन हो गया. जो गिवन है वो आपका ट्रेनिंग डेटा हो गया. ट्रेन करने के बाद, मॉडल इवैल्यूएशन के बाद आप इस पे प्रेडिक्शन कर दोगे, एंड देन यू विल कॉन्कैटिनेट इट और मर्ज इट. गॉट इट? So algorithms can never be used for missing values. That is completely wrong statement. उनको आप इस context में हो कि I am using it for making predictions for my missing values, and I am not using my own logic. I am letting algorithm to identify कि इस respect में क्या आना चाहिए given the training from the data. It is accepted as long as everything is into correct syntax. कोई भी एल्गोरिथम की बाउंडेशन नहीं होती कि वो ऐसी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा. इट हैज टू बी इनटू डेट टाइम फॉर्मेट. स्ट्रिंग में दोगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज अबाउट. डेट टाइम फॉर्मेट में होगा, इट विल डेफिनेटली एक्सेप्ट. कोई एल्गोरिथम विल नॉट रिस्ट्रिक्ट यू कि यू कैन नॉट गिव डेट, यू कैन नॉट गिव दिस एंड दैट. ओके, गिवन इनटू द करेक्ट सिंटेक्स. But do not, okay. And इसमें if I say you come up with other columns, आपने month का column generate किया, आपने time का column generate किया, and आपने date का column generate किया. So will you be giving all those columns, or what will you take at that time? अगर आप algorithm में जानते भी हो, how would you do that? You are coming up with new columns. Let's say this is your month column, आप लेके आए हो. Date column, start time and end time. So will you be taking all these columns, start date, end date, या क्या आप सभी के साथ proceed करोगे, या what your approach will be, या you will not be taking either, या how will you proceed in this case? When you have these columns generated, या अपने feature engineering से you came up with these new columns. You can also come up with a speed column. What is the speed? What अगर long distances पे what speed does this person follow?
short distance पे what speed does he follow, what is his average speed, what is his driving speed on an average. You can come up with these new features using feature engineering. No, my question is, आपने फीचर इंजीनियरिंग से ये भी सभी कॉलम्स जनरेट किए. सो लेट्स से हम वी हैव ट्रीटेड दीज मिसिंग वैल्यूज आल्सो, हमारे पास सारा डेटा क्लीन हो गया, डमी वेरिएबल सब बना लिया, वी हैव दीज फीचर्स आल्सो जनरेटेड. तो व्हाट ऑल फीचर्स विल यू टेक इनटू कंसिडरेशन नाउ फॉर योर मॉडल मेकिंग, फॉर योर प्रोडक्शन मॉडल बनाना है आपने, व्हाट ऑल यू विल टेक. आई वांट द नेम ऑफ फीचर्स फ्रॉम यू. What all features we should go with when I'm talking about I want to make a model? What should I go with in that case? Give me the names. What all names you will take? Give me the names, everyone. आपने algorithm लेना है. You will have to, let's say you are working with KNN only. What all features you will feed in? And given you have created these features using feature engineering, आपने data cleaning, dummy variable सब बना लिया है. So what all features will you take into consideration? You have all these features. I want the names. Category. ठीक है. Stop, miles, purpose, month. If you're taking start date and end date, so there is no, what has happened? Okay, just a second. See, what I was trying to highlight in here. How did you get these columns of start date and जो भी आपने column generate किए? You got that from start date and end date, start time and time. तो या तो you will take these features into consideration, ठीक है? या फिर you will take them into consideration. You will not take कि आपने ये भी ले लिया और ये भी ले लिया. Then that is something extra, not needed. क्योंकि month कहाँ से आया? Month is from here. Time कहाँ से आया? यहाँ से आया. Duration कहाँ से आया? Even if you have another column, let's say you have duration, right duration. Then in that case also you will not take the start time and stop time. आप EDA में आप ये, what is happening? आप EDA में ये सब ले सकते हो ना. If you want to explore data, you want to generate insights, you can take start time, end time. But if the point when using algorithm, ML algorithm for making prediction, let's say किसी भी आपने speed की prediction करनी है, then in that case या तो आप right duration लोगे या फिर आप start time, end time लोगे, क्योंकि इन दोनों का difference ही is making up this particular column. यहाँ पे I will take only month column, तो I will not take the start date and end date. Along with month, then I will have to take this also. तो जहां से you're generating your data, either take the new features or take the previous existing one into the correct format. क्योंकि then both these features and these features are referring to the one and the same thing. There is no point of taking all together. Got the point? So if you take speed, I will try to see if distance and time are needed or not. Yes, क्योंकि speed is relatable to what? Duration and miles. So EDA के लिए you can take what is the average speed, but into that case for algorithm you will go for the selected features only. Overlapping feature जो already एक दूसरे से derive हुए हैं directly, वो आप overlapping features नहीं लोगे. Then that will be something very much extra for algorithm to take into consideration. Got this point, everyone?
Okay. Any other questions to ask up along from that? You could also find out, just give me a second, let me tell you what all you can find out from this one. You can also find out key, you can make bucket from your time column. You can make bucket कि क्योंकि हमारा टाइम क्या है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, या तो आप कॉन्टिन्यूस डेटा पे यू विल मेक अ प्लॉट कि सुबह 8 बजे निकले, 9 बजे निकले, रश आवर्स के लिए, व्हाट टाइम दिस पर्सन इज जनरली स्टार्टिंग. तो फॉर दिस टाइम कॉलम यू कैन से मॉर्निंग, आप बोल सकते हो ना, यू कैन मेक अ बकेट इन यूजिंग बिनिंग फंक्शन और लेमडा फंक्शन. मॉर्निंग के बकेट बना दीजिए, डे या इवनिंग, एंड देन नाइट शिफ्ट और मिडनाइट कि कौन सा. एंड देन यू कैन हैव एन एनालिसिस कि दिस पर्सन इज यूजुअली किस टाइम पे कितनी माइल्स. अगर मॉर्निंग पे डज ही ट्रैवल मोर ऑन टू द माइल्स पार्ट, आप बकेट्स एंड माइल्स को आप देख सकते हो कि नाइट टाइम पे वो कितना ट्रैवल करते हैं, इवनिंग पे व्हाट आर हिज बिजी आवर्स, डज he travel maximum at this time in morning time, evening time, कितनी स्पीड से उस रिस्पेक्टिव टाइम में ट्रैवल करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. एंड कैटेगरी पे what are the most common purposes when this person is having a morning ride, or what are the most common purpose when this person is having a day or evening or a night ride. क्योंकि कैटेगरी में नहीं ज्यादा इंसाइट मिलेगा, क्योंकि दो वैल्यूज है, डोमिनेटिंग है बिजनेस एंड पर्सनल. तो इस पे तो आपको ज्यादा इंसाइट्स मिलेगी नहीं, क्योंकि 90% या इवन मोर डेटा इज इनटू द बिजनेस कैटेगरी. बट या डेफिनेटली यू कैन गो फॉर पर्पस, यू कैन गो फॉर माइल्स, यू कैन गो फॉर स्पीड. ठीक है, तो आप एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑल्सो, what else you can find out in here is, with respect to that आप days भी निकाल सकते हो. given this date, pandas में into date time function you can also come up with day column. day, जैसे for example it is saying 1st of January, तो is it a Monday, is it a Tuesday, is it a Thursday, आपको ये चीज भी available होती है. Thursday, Wednesday, जो भी है, you will have these functions. You need to explore if you are able to good to go. Otherwise, मैं बता दूंगी how you get them. But try to do your homework. पहले करके देखो. Using this given date, यहाँ पे date क्या है? 1st of January 2016. तो आपके functions available है Python में, Pandas में, date time module में. जो आप बोलोगे ना date, what is this date? Then it will tell you that this was Monday, this was Tuesday, this was Wednesday. ठीक है, day of the week. Yes, correct Akash, day of the week. So you can also analyze ki which day, of which day of the week is it, Monday, Tuesday, Wednesday. This person does morning shift, night shift, speed, या कौन से distance, कौन सी location पे this person is maximum. Trying to understand what I'm saying. With day of the week, just like आपने यहाँ पे this is called feature engineering. यही होता है ना कि आपके पास सिर्फ टाइम था, आपने टाइम से क्या निकाला, ड्यूरेशन निकाला, आपने बकेट्स बना दिए. आपके पास डेट थी, आपने मंथ निकाला, आपने डेज निकाल दिए. नो, इट विल नॉट शो एरर. आप सिंटेक्स एरर, देयर माइट बी सम सिंटेक्स एरर, कुछ ना कुछ इज हैपनिंग रॉन्ग. इट विल नॉट शो एरर. इट विल अलाउ यू टू ऐड. if you're not able to, you will use lambda function. You'll get some sort of graph कि जैसे as you can see onto the screen here कि with respect to Monday, your Friday, what is the total count with respect to Saturday when this person is traveling. So you can come up with days of the week as well. Pickup time and start time will have almost the same क्योंकि day to date वही रहेगी, time will change, but yeah, you can make these day buckets as well, day of the week, along with time and along with location and along with the purpose. Hue category में आप purpose डाल सकते हो, और if the purposes are more, then you can further make sub categories of them. कि जैसे customer visit है, meeting है, and supplies है, you can, or temporary site है, you can put them under one category, that is professional work. let's say meal entertainment हो गया, और and what else we can, let me just put it out from here. So इसमें what you can do is, see इसमें भी आप further buckets बना सकते हो. let me take a pen. It is not working with that pen, is not working with the filter. चलो कोई नहीं. between offices, airport travel, commute, आप इनको एक कैटेगरी बना सकते हो. charity, something personal,
meal, entertainment, moving, and that's it. Incops category 2, temporary site, customer visit, and ये जो है supplies, you can make it category 3. तो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा multiple categories है, आप Hue में you can take that as well. लेकिन if you find it hard to analyze, तो assuming realistic scenario में that part will be always that you need to cross check कि मैं इनका सब category बना रही हूँ. But assuming there is no person to cross check in here, तो बेसिस ऑन दैट आप इस पे भी यू कैन मेक सब कैट, जैसे हमने मॉर्निंग डे नाइट बना दिया ना, बेसिस ऑन दैट यू कैन कम विद सब कैटेगरीज. सो मेजर बकेट्स बना सकते हो बकेट में, एंड देन यू कैन पुट देम अंडर फिर मॉर्निंग डे नाइट फॉर डेज ऑफ द वीक एंड समथिंग लाइक दैट. या टेम्पररी साइट, सप्लाईज, मूविंग, all into travel. Yes, travel and work. Great one, Anusha. Just like this is given by Anusha. A chat window में you can see meeting work between offices could be for work. तो उससे भी you get to know कि morning में does this person go for a work, does this person go for a travel, night में what does this person go for, कौन से दिन में, and which is this busy day, सबसे ज्यादा जो miles cover होती है किस दिन cover होती है, किस दिन this person is. You can also have a count plot कि ना 6 तारीख को he did this much of travel, 10 तारीख को he did this much of travel. What is the किस दिन वो सबसे ज्यादा busy रहे, किस month में सबसे ज्यादा busy रहे, what are his busy days in a month. Maybe he gets busy into, let's say यहाँ पे 10 की will have good amount of entries, 11 also have good amount of entries, 12 की भी, 13 की भी. Maybe mid of the month this person gets very busy, end of the month or starting of the month this person is not busy, or maybe for December में ज्यादा busy है, November में ज्यादा busy है. तो यू कैन कम अप विद मच मोर इनसाइट्स गिवन आप जब ये चीजें अलग से जनरेट करोगे, जो सिर्फ आपको इन दो से नहीं मिलेगी, स्टार्ट एंड एंड से नहीं मिलेगी. यू विल हैव टू मेक दीज columns using feature engineering, using given predefined libraries and functions, and then it will give you much more insights. तो जो feature engineering का भी concept है, is it also, are you all able to relate it, how you do that part and generate more insights from the data when we talk about feature engineering specifically? क्योंकि ये दो चीज वे यू गेट टू सी नाउ, ये दो चीज आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती. यू विल हैव टू बाइफिकेट देम, यू विल हैव टू कम फॉर दीज न्यू फीचर्स, तभी आपको वो इंसाइट्स मिलेगी. इन दो चीजों से यू विल नॉट गेट द इंसाइट. क्लियर? एंड इनसाइट के लिए सबसे पहले ऑलवेज हैव अ लुक ऑन टू द डेटा, डेटा है किस बारे में. बिकॉज अभी जो चीज हम सब देख रहे हैं, दैट सम थिंग्स आर नॉट रेलेवेंट टू कैब राइड. वो कैब राइड पे काम ही नहीं करे, क्योंकि कैब्स के सिनेरियो में भी लुक फॉर ना कि बिजनेस आवर्स कौन से है, पीक टाइम कौन सा होता है कस्टमर का, किस टाइम पे कस्टमर पिक करना चाहिए, व्हाट आर द प्राइम लोकेशंस. लेकिन क्योंकि एक पर्सन का डेटा हो गया, तो प्राइम लोकेशन वाला, पीक आवर्स वाला, या फिर व्हाट टाइम इज द बिजी टाइम, वो कॉन्सेप्ट सब हट गया. करेक्ट? राइट और रॉन्ग एवरीवन? आपका सिनेरियो ही चेंज हो गया ना पूरा. अगर लेट्स से इफ इट वाज अ कैब राइड डेटा, तो हम देखते हैं ना व्हाट वाज की पीक आवर्स क्या होते हैं, पीक आवर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ लोकेशन या पिकअप लोकेशन कौन सी है, मतलब यहीं पे आई एम गेटिंग मच ऑफ द बिजनेस. पीक आवर्स, मैक्सिमम ड्रॉप लोकेशन, जो कैब ड्राइवर है व्हाट इज उसका स्पीड क्या होता है, या वो कितना टाइम कंज्यूम करता है. सो लेकिन दिस इज फॉर कैब. और लेट्स से कि जनरली मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर होता है. अगर लेट्स से मैं आई कुड मेक अ बकेट की सिटी ए में मेरा मिनिमम डिस्टेंस 10 होता है, तो मैंने इट मींस I could come with some sort of business use case कि अगर if I'm going into Pakistan, if I'm going into Sri Lanka, so this is the time or this is the distance usually taken. तो मे बी डिफरेंट उस केस पे आई कैन गो फॉर डिफरेंट फेयर. अगर रियलिस्टिक सिनेरियो कि अगर आपका 10 किलोमीटर है तो आपने इतने पैसे देने ही देने हैं, तो बिजनेस स्ट्रैटेजीज आ जाती है गिवन इनसाइट. लेकिन क्योंकि अभी कैब राइड डेटा है ही नहीं एक पर्सन का, तो दीज यूज केस डज नॉट मेक एनी सेंस नाउ. So it is always important to have a look onto the data before making your own, before putting questions to yourself. Have a look onto the data कि data में what it is about. Are those questions relevant or not? Got the point everyone? तो ये चीज all of you missed it and आप सब चीज कर लेते, then at the end of the day you would find out कि ना ये meaningless है जो हमने निकाला. आप ये चीज निकालते मे बी and you will find out कि ये तो कुछ काम की नहीं है क्योंकि एक person का तो does not make any sense. Clear everyone? So have a look and then try to come up with these things also, and then see what all can be given up here.
You can use Matplotlib, you can use Seaborn, up pick up RC. This is given a distribution of your time. When you see in here onto this graph, let me show you कि आपका pickup time. This person is usually busy around 10 to 8. Generally इनका pick time यही होता है. So you can come up with multiple kind of graphs. Also Seaborn में अगर Matplotlib अच्छी नहीं लगती, Seaborn ले लीजिए. Seaborn is very easy. तो मल्टीपल थिंग्स कैन बी टेकन अप. किस दिन वो सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं, ट्रिप ड्यूरेशन उनका कौन से दिन, फ्राइडे ज्यादा ट्रिप ड्यूरेशन होता है, मंडे ज्यादा होता है, सैटरडे ज्यादा होता है. एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी टेकन अप. पिकअप आवर, ड्रॉप ऑफ आवर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिकअप आवर, आरली वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर बकेट नहीं बनाना, जैसे मॉर्निंग इवनिंग बना सकते हो, विल गिव यू अ बकेट मॉर्निंग टाइम, डे टाइम, नाइट टाइम. और एल्स यू कैन ऑल्सो टेक डिस्ट्रीब्यूशन की 2 बजे द नंबर ऑफ टोटल ट्रिप ड्यूरेशन फ्रॉम दिस डेटा इज टोटल अमाउंट कितने, टोटल 150 मिनट्स. अगर उन्हें 2 बजे निकले हैं, तो अगर वो शाम के 4 बजे निकले हैं, तो टोटल टाइम was around 380 or sorry 340 or 330. So these things you can come up with when you make graphs, but you have to have these things created, and इनके लिए you will have to do your own homework. आपने खुद से करना पड़ेगा, but all, how do you come to these columns? If you are able to get to these columns, well and good. Otherwise, then I'll tell you how do you use datetime features. How do you use datetime thing? Then we'll have a class on to datetime as well. Clear everyone? Any further questions to ask? Okay, Komal, आपने मुझे कोड भेजा है, उसमें do you have an error or what do you have, Komal, into that? Or you have a question to ask, like error in plotting? Okay, let me see. What is your mail ID, Komal? Okay, capped out data I've received. Just give me a second. Okay, you got the miles with respect to the purpose. ठीक है. Where you were having the error, sns dot bar plot month miles, total miles per month. This is your error talking about, Komal. Unknown date time string format, unable to parse month. What is month here? Month is what? आपने क्या बनाया उसको? String. Make a count plot for this one. If you want to have, make a count plot. Oh, let me execute it. Just give me a second. Where is rights per month?
How will it plot it, कोमल? ये इसको प्लॉट कैसे करेगा? As I told, just give me a second. What it is, object in here. No, you need to change this. तभी उसने वो error दिया. You will have to या तो come up with certain values only. Because unknown date time string format unable to parse. वो सीधा सीधा बोल रहा है unable to parse. Although object here, although it is what object here, लेकिन it is not accepted into the graph. Month should be separated या come with proper categorical data या अलग से, but it is not accepting क्योंकि graph की उसकी अपनी एक limitation है. तभी उसने सीधा सीधा बोल दिया it will not accept unknown date time string format unable to parse. So you need to change it. You need to do some more sort of cleaning, कोमल. ठीक है? That is your call. How do you do it? अभी के level, हाँ जी, you can also say you can separate into column. And why are you coming up with new data frame, कोमल? Why don't you put it into the original one? आप अभी अपने मंथ और माइल्स के लिए निकाल रहे हो, मंथ को मे भी आपने विद रिस्पेक्ट टू अदर चीज के लिए भी निकालना, देन आप नया डेटा फ्रेम बनाओगे. अवॉइड मेकिंग न्यू डेटा फ्रेम्स, पुट एवरीथिंग इनटू द सिंगल वन. तो आप वहां पे कॉलम पिक करे तो इस डेटा फ्रेम की भी कॉलम पिक कर सकते हो ना. तो डोंट कम अप विद न्यू डेटा फ्रेम्स. मे बी मंथ could be used with start position or could be used with duration as well. Then आपने will create something else with that again, some other data frame. So एक ही data frame में रखो, come up, try to make it into one. हाँ जी. And इसमें month को segregate कर लो as January, February या 01 ही रख लो, but it is not accepting this 2016 and the hash part. Okay. And then try doing it. So month you will have to fetch. आपने date time operations लगाने पड़ेंगे. You will have to fetch the month specifically कि 01, 02, 03 वो आपने fetch करना पड़ेगा अलग से. जैसे I think आपने नहीं आपने नहीं किया. Maybe into the coming no down. No, month fetch करना पड़ेगा. Then you will be able to do it. जैसे for example, let me show you the graph. I know आप कैसा ग्राफ देखना चाह रहे हैं. Let me show you. So here. Yeah, you will have to convert. Matplotlib में date time के लिए it does not accept. वो problem करता है. Just a second. नहीं वो ऐसे डेट फॉर्मेट में ले लेगा. ऐसे नहीं कि ले लेगा. You will find graphs. लेकिन then you will have to come with certain other customization. सीधे सीधे नहीं लेगा. आपने अलग से चीजें डालनी पड़ेगी. सीधे सीधे नहीं लेगा. And that comes out to be very complex. वो ले लेता है. It will take.
It's not कि वो नहीं लेगा, but some other things have to be put up. जैसे it's not in here. Give me a second. जैसे you're talking about this is business. So with respect to month, आप ऐसा कुछ चाह रहे होंगे. On to the y-axis, you might be needing miles. I've taken up frequency, but yeah, you need to do them. Yeah, like this. You will have to. डेट के लिए देन अगर आपने डेट ही प्लॉट करा देन लुक फॉर सर्टेन हेल्प हाउ टू प्लॉट डेट ऑन टू एक्स एक्सिस इन मैटप्लॉटलिब. देन यू विल गेट द कोड स्पेसिफिकली, बट वो ऐसे नहीं होगा सीधा, उसमें अलग से यू विल हैव टू गिव डिफरेंट वैल्यूज. इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो ऐसे एरर देगा अदरवाइज. ठीक है. एनी क्वेश्चंस टू आस्क, देन उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. Do you have any other questions to ask? तो I would say we have discussed it. तो आपने अब कोड करना है. We have had a discussion what can be the process flow. Okay? तो करके देखो इसको, and also बाकी पे भी करना. जितना hands on you do, the more learning you will have. So any further questions to ask into this CAB ride या फिर कुछ और data set में any kind of question you want to ask? Yeah, still you have a doubt. Any questions, everyone? Get dummies, bridge column, bridge type, prefix type is. What is prefix here? आकाश डॉक्यूमेंटेशन. प्रीफिक्स आपका नाम के सामने जो आप डमी बनाओगे, प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? Have a look onto the documentation always. String to append onto data frame column name. आपने प्रीफिक्स यहाँ लिखा, तो जो आप नाम डालोगे उसके सामने एक प्रीफिक्स अटैच होके आ जाएगा. That's it. एग्जाम्पल भी होंगे नीचे. No, but yeah, you'll get examples here, but prefix का मतलब यही है यहाँ पे. मैपिंग कॉलम नेम टू प्रीफिक्सेस जो भी है. ओके. कुछ भी क्वेश्चन होना, कुछ भी पैरामीटर का, दे आर ऑलवेज वेल डिफाइंड इनटू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. चाहे आप एल्गोरिथम का ले लीजिए या पांडास में या नमपाई में, ऑलवेज गो ऑन टू द डॉक्यूमेंटेशन. दे हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन. अगर नहीं समझ में आए फिर भी, देन रेफर टू द एग्जांपल्स. यू विल हैव एग्जांपल्स आल्सो ऑनलाइन. जैसे अगर इसी की बात करें तो जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से if I go on to this or any, or let's say Stack Overflow, इसमें एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब होगा. So let's say if I say there is no here, not explained. कोई नहीं, but you just have to explore and you get the answer either on this or other website. ठीक है. Visualization is then in limit for graphs. No, there is no limit, आकाश. See, चीज क्या होती है, अगर मैंने आपको being let's say you are the person who is giving me the solution, तो जब तक मेरे questions answer नहीं हो जाएंगे, I'll keep on asking the solution to you, right? तो realistic scenarios में what happens is जब तक you're not able to answer all of the questions of mine, जब तक I'm not satisfied with your output कि आप जो दिखा that is relevant, I'll keep on asking. So there is no limit. So I put up questions
at times, and at times you give me solution from your end also कि ये चीज भी possible है, do you want it, do you don't want it, तो that way also it works. ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि जो हमारे कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उनका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो. क्या उनको ईडीए चाहिए तो हम जैसे भी पॉसिबल है वी गिव दोस. उनको मॉडल चाहिए अच्छे वाला, वी हार्ड हम उसको वी ट्राई कि अच्छे से मॉडल बना के उनको दें. तो कोई कुछ लिमिट नहीं है, ऐसे कोई भी लिमिट नहीं है कि मैंने एक अल्गोरिथम लगाया मैं दूसरा नहीं लगाऊंगा, या फिर लेट्स से इनिशियल राउंड में इट आल्सो हैपेंस, यू नो, कपल ऑफ मंथ जाते हैं, आपने एक अप्रोच यूज की, लेकिन उस अप्रोच से योर सोल्यूशन इज नॉट गेटिंग, तो फिर आप सेकेंड अप्रोच पे भी आप आओगे कि पहले ने तो काम नहीं किया, उसमें प्रॉब्लम आई, अब सेकेंड अप्रोच में यूज करूंगा. तो एंड ऑफ द डे व्हाट इज द एंड गोल रियलिस्टिक सिनेरियोज में, जो हर बिजनेस की प्रॉब्लम है, चाहे एनालिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, दिस इज द एंड गोल. चाहे आप 50 बार एक चीज आपको करनी पड़े, दिस इज द एंड गोल, चाहे कुछ भी करना पड़े. क्लियर एवरीवन? क्लस्टरिंग, आउट ऑफ बाउंड एरर का मतलब आकाश वो है, आप जो वैल्यूज दे रहे हो ना उसमें प्रॉब्लम है, क्लस्टरिंग में प्रॉब्लम नहीं है, जो वैल्यूज दे रहे हो उसमें प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सिंटेक्स में या जो आप रेंजेस दे रहे हो उसमें प्रॉब्लम है. आउट ऑफ बाउंड का मतलब है जैसे अगर आपकी लिस्ट की लेंथ थी 6 एलिमेंट्स या 7 इंडेक्सेस और आपने इंडेक्स दे दिया 8, तो वो आउट ऑफ बाउंड बोल देगा इसको, क्योंकि है ही नहीं. तो उसको क्रॉस चेक करके देखो एक बार, आपके बोल रहे हैं 155, आपकी एंट्रीज कहाँ तक होंगी 101,154 तक, तो टोटल काउंट 155 है, तो मे बी ना क्रॉस चेक ऑन टू द इंडेक्स पार्ट या वैल्यूज में आप वहीं कहीं मिस्टेक कर रहे हो. ठीक है आकाश, एक बार क्रॉस चेक करना, यू गेट द आंसर. Okay, so it's 9:18. Let's have a break of 10 minutes. We shall resume at 9:20. Sorry, 9:28. ठीक है, उसके बाद we'll start with our decision trees and random forest वाला concept. Okay, everyone. So I'm just putting a note here. Okay, so let's have a break, everyone. Stepwise. What stepwise, Akash? देर इज नो सच स्पेसिफिक स्टेप. आपने सबसे पहले आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि कितनी मिसिंग वैल्यूज है, वो भी ईडीए का पार्ट है. मिसिंग वैल्यू जाना, आउटलायर जाना, वो भी ईडीए का पार्ट है. किससे रिमूव करें, वो भी ईडीए का पार्ट है. रिमूव होने के बाद क्या डिस्ट्रीब्यूशन आया, वो भी ईडीए का पार्ट है. तो हर चीज ईडीए है, जो मॉडल से पहले आप अपने डेटा को जान रहे हो, दैट इज ऑल ईडीए. तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट अप्रोच की पहला स्टेप यही होगा, सेकेंड यही होगा. इन्फो में हम डॉट इन्फो करते हैं, डॉट डुप्लीकेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईडीए. तो ईडीए इज नॉट मैंडेटरी कि ग्राफ्स को ही हम ईडीए बोलेंगे. ओनली ग्राफ्स आर नॉट इनटू ईडीए. आप नल वैल्यूज चेक करना, डुप्लीकेट्स चेक करना, वैल्यूज काउंट चेक करना, एवरीथिंग कम्स अंडर ईडीए. ठीक है. Okay, so let's have a break, everyone, and we shall resume after that.
Is everyone here? Here? Okay. So, till what point did we have a discussion on to decision trees? Can you please tell me? Decision trees पे हम कहाँ तक we had a discussion on to okay, just started the theory part है ना, the Gini index. We had a discussion on to the theory part. Calculations हमने नहीं की थी because it was getting out of the box, out of the time window. Okay. So Gini index, what is Gini index for you? Why do we use Gini index? What does Gini index tell you? We had a visualization onto the tree last class. So what does the Gini value tell you, everyone? Gini value क्या बताता है आपको? And what value of Gini should we opt for? क्या होनी चाहिए Gini की value? Am I audible? Am I audible? Okay. And to others, please give me confirmation. अच्छा ठीक है चलो. So just please tell me what does Gini value? Probability of class being wrongly classified. ठीक है. So अगर Gini value is 0.8, what does this tell me? Gini value of probability of getting a feature selected incorrectly when that. इस 0.8 का वैल्यू का क्या मतलब है? Gini value of 0.8 का मतलब क्या है? What does this value specify? Is it a good value? Is it a bad value? So more wrong, bad value की 80% सिंपल टर्म से मैं अगर समझने की मैं बात करें तो 80% चांसेस हैं कि गलत क्लासिफिकेशन देगा. ठीक है, तो सही कितना होगा? 1 माइनस 0.8. ओनली 20% चांसेस. ऑल्दो हम परसेंट नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, डोंट यूज परसेंटेज. सो 0.8 इज द, दिस इज व्हाट Gini इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड. इसमें बैकएंड में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है. तो देयर इज 0.8 प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो क्लासेस है मिसक्लासिफाइड है. और कितनी प्रोबेबिलिटी बची क्लासेस की सही क्लासिफाई होने की? ओनली 0.2. सो इट इज नॉट अ गुड मॉडल. तो Gini आपका वो थोड़ा घुमा के बताता है. Okay, so there are two things used into decision trees: Gini value and entropy. Entropy हम information gain के साथ use करते, we'll see how we do it. So total value of Gini will sum out to be 1, and it will tell you जो अभी हमने discussion किया probability कि आपकी जो class है वो कितनी आप wrongly classify या purity times purity terms में भी बोल सकते हो कि how impure it is. 0.8 probability मतलब 0.8% is the impurity, wrong classification, and 0.2 is the only purity मतलब correct classified. ठीक है, so this was the formula of Gini. I went too down. Yeah, this is the formula of Gini. So 1 minus summation of all the, what is P? Probability. P is your probability. उस probability निकालेंगे. We'll take the square and we'll take the summation. ठीक है, and then we'll subtract it from 1 minus. Then this will give me the correct classification. तो हमें Gini value क्या चाहिए? We want to have a minimum Gini value. जिस भी feature की Gini value सबसे कम होगी, that feature comes out to be our root node. ठीक है, आई होप एवरीवन इज कॉन्सेप्ट विद द रूट नोड. रूट नोड क्या होती है, लीव्स क्या होती है, डिसीजन क्या होता है, वो चीज सबको क्लियर है. ठीक है, नाउ टेकिंग दिस एग्जांपल इट विल गिव यू एन आइडिया. हमारे पास दीज आर आवर फीचर्स, इनको लेके हमें प्रिडिक्शन करना है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू नो स्टॉक मार्केट. एग्जांपल है समझाने के लिए, रियलिस्टिक ना भी हो, कॉन्ट्रडिक्शंस मिले, जस्ट इग्नोर. दिस इज फॉर द एक्सप्लेनेशन की कैसे कैलकुलेशन होगी. ठीक है, तो हमारे पास ट्रेंड में हाउ मेनी, सो ट्रेंड में हमारे पास दो चीजें हैं. वी हैव पॉजिटिव एंड व्हाट वी हैव इज नेगेटिव. इनटू ओपन इंटरेस्ट हमारे पास दो चीजें हैं, लो एंड हाई. ठीक है, सिमिलरली ट्रेडिंग वॉल्यूम में हमारे पास दो चीजें हैं, हाई एंड लो. रिटर्न दो है. जब हमारे पास पॉजिटिव ट्रेंड है, रिटर्न अप की क्या प्रोबेबिलिटी है? पॉजिटिव रिटर्न अप 1 2 3 4. So 4 by total कितने इंस्टेंसेस? आई थिंक दे आर 9.
So 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 4 by 10 is the probability when your trend is positive and return क्या है? Return is up. ये चीज क्लियर है आपको? And when the return is down, probability आपकी ट्रेंड आपका पॉजिटिव है and when return is down, तो आपका सिर्फ ये इंस्टेंस when trend is positive return is down 2 by 10. Is it clear to everyone? What is this 2 by 10? What is this 4 by 10? ठीक है, ऐसे ही रिटर्न जब नेगेटिव है प्रोबेबिलिटी डाउन 1, 2, 3, 4. आई थिंक इसमें ना पॉजिटिव के लिए भी डोंट हैव, सो 4 by 10 इज फॉर योर नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ट्रेंड आपका अप है ही नहीं कहीं पे. नो, सो फॉर अप वी हैव 0. वी डू नॉट हैव एनी इंस्टेंसेस व्हेन द ट्रेंड वाज नेगेटिव एंड द रिटर्न वाज अप. ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के लिए भी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होंगी एंड यू विल ऑलवेज टेक द टारगेट इनटू कंसिडरेशन. जब भी आप इसकी जो जैसे लो है, लो का भी आप अप के साथ देखोगे, लो का डाउन के साथ भी चेक करोगे. जैसे मैंने पॉजिटिव ट्रेंड का अप के साथ कैलकुलेट किया एंड लो के साथ कैलकुलेट किया. सिमिलरली नेगेटिव ट्रेंड का अप एंड अप, जब रिटर्न अप था एंड रिटर्न डाउन था, दोनों के लिए कैलकुलेट किया. सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड हियर. इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज लो, व्हेन आपका रिटर्न अप कितनी बार आता है, रिटर्न डाउन कितनी बार आता है. सिमिलरली जब आपका रिटर्न हाई, इंटरेस्ट हाई है, आपका रिटर्न अप कितनी बार आता है और रिटर्न डाउन कितनी बार आता है. तो ऐसे ही इनकी प्रोबेबिलिटीज भी आ जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू बोथ. सो इसमें भी होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी, ओपन इंटरेस्ट में भी. इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट जो मैंने समझाया? यू विल ऑलवेज हैव टू, क्योंकि दिस इज व्हाट हमें प्रिडिक्शन इसका करना है, तो वी विल ऑलवेज हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन. इसको वी कैन नॉट इग्नोर. सो आर यू क्लियर दिस टिल दिस पॉइंट? व्हाई एम आई टेकिंग फॉर बोथ अप, return up and return down with every unique instance of my trend column? जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अप एंड डाउन देखा, नेगेटिव के लिए भी अप एंड डाउन देखा, ऐसे लो और हाई के लिए भी देखेंगे और ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी लो और हाई के लिए देखेंगे. ठीक है, सो लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. सो व्हाट हैव वी डन हियर? ओके, इसमें इरेजर नहीं है. So you see, एक second, maybe I'm not erasing it. So you see, when your trend is positive, what are your instances? 6 by 10 total. This is your positive trend and negative with respect to, without any up. You see, आपको सिर्फ यहाँ क्या दिख रहा है? Positive, negative. Do you find any up and down here? आपको यहाँ do you find any up and down? Let me change the color. Might help. There is no up and down here. तो पहले with respect to every feature आपने जो independent है with respect to target वो भी calculate करना है. तो this is independent with respect to target. यहाँ पे you have only positive and यहाँ पे you have only negative. Similarly, for your interest also you will calculate independent with respect to your target, high and low. Volume के साथ भी with high and low independent of target. तो एक बार तो target के साथ होगा, दोनों में टारगेट के साथ भी होगा और विदाउट टारगेट भी लेना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट विदाउट टारगेट 6 by 10, क्योंकि हमारे पास टोटल पॉजिटिव के इंस्टेंसेस कितने हैं? 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 6 by 10. नेगेटिव के कितने हैं? 4 by 10. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज दिस अबाउट जो मैंने हाईलाइट किया? थोड़ा ओवर राइटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, बट इज इट क्लियर? दिस 6 by 10 एंड 4 by 10. ऐसे ही सिमिलरली व्हेन योर ट्रेंड इज पॉजिटिव and your return is up, what is the probability you have gotten? 4 by 6 हमने, सॉरी दिस इज टोटल 10, हमने पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में देख रहा था 4 by 6, क्योंकि टोटल हमारे पॉजिटिव के इंस्टेंसेस कितने हैं? 6. So it will not come 10 here, 6, क्योंकि हम उस रिस्पेक्टिव कॉलम के निकाल रहे हैं. It will not come 10 here, it will be 6 in here, not 10, because we are calculating only with respect to what? We are only calculating with respect to the trend column. एंड उसमें भी हम सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हैं. सो 6 विल कम हियर एंड इसमें भी 4 by 4 विल कम इन द बॉटम, 4 by 4. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूँ, बहुत ड्राइंग्स हो गई हैं इस पे. सी व्हाट इज हैपनिंग है, ये हमारा इनिशियल इंस्टेंसेस थे, पॉजिटिव के 6, नेगेटिव के 4. हमने ये खुद से भी देखा, व्हेन द ट्रेंड वाज पॉजिटिव एंड रिटर्न वाज अप. टोटल हमारे पास 4 इंस्टेंसेस है, लेकिन हमने वहां पे क्या किया था? 4 by 10. तो हमने सभी को कैलकुलेट किया. 10 में क्या आ गया आपका? नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, लेकिन हम 10 नहीं लेंगे. आई वाज रॉन्ग, क्योंकि अभी हम सिर्फ किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? पॉजिटिव एंड रिटर्न अप.
जो ट्रेंड की दो कैटेगरीज थी, एक तरफ क्या थी पॉजिटिव कैटेगरी, एक तरफ क्या थी नेगेटिव कैटेगरी। इस नेगेटिव कैटेगरी में अप एंड डाउन, इस पॉजिटिव कैटेगरी में अप एंड डाउन। तो यहाँ पे जो अप था तो इन दोनों को ही लेंगे हम, टोटल नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला 6। एंड व्हेन द ट्रेंड वाज पॉजिटिव एंड रिटर्न वाज डाउन, तो हमारे पास दो इंस्टांसेस थे, एक था 4/6 और दूसरा क्या था 2/6। टोटल कितने हो गए यहाँ पे 4 + 2 6। ये चीज क्लियर हुई व्हाट दिस 4/6 एंड 2/6 इज रेफरिंग टू एवरीवन। टू कैलकुलेट जीनी, आकाश हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, जीनी वैल्यू। हाउ डू यू कैलकुलेट जीनी वैल्यू? इट इज नॉट मैंडेटरी, इट्स टोटली ऑप्शनल। हम खुद से नहीं करते, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डिसीजन ट्रीज में काम कैसे होता है बैकएंड में। तो ब्लैक बॉक्स नहीं है, तो वी कैन डिकोड इट। नहीं, अभी सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने पॉजिटिव के लिए निकाला, पॉजिटिव के लिए बोथ, सो दिस इज ऑल फॉर योर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न अप एंड डाउन। ऐसे ही सिमिलरली अभी हमने यहाँ पर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज निकाली। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर जीनी? 1 - समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड उसका हमने क्या किया था स्क्वायर, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, 4/6 का स्क्वायर, करेक्ट। प्लस व्हाट इज हैपनिंग हियर प्लस, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे समेशन, तो प्लस विल हैपन। प्लस सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या है, टॉकिंग अबाउट ट्रेंड कॉलम में पॉजिटिव, डाउन क्या क्या था 2/6, तो 2/6 का स्क्वायर इज हैपनिंग हियर। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज का हमने क्या किया स्क्वायर एंड एडअप किया, किस में से माइनस किया 1 में से। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द जीनी वैल्यू ओनली फॉर योर पॉजिटिव ट्रेंड। यहाँ पे नेगेटिव को हमने लिया भी नहीं अभी तक, दिस इज ओनली फॉर व्हाट पॉजिटिव। इज दिस क्लियर हाउ इट इज कैलकुलेटेड टू एवरीवन? क्लियर? तो सिमिलरली ऐसे ही नेगेटिव के लिए निकलेगा। ऐसे ही जब हमारा पॉजिटिव ट्रेंड आया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे ही आया नेगेटिव के लिए। हमारे पास टोटल नेगेटिव के कितने इंस्टांसेस थे 4, एंड उसमें सिर्फ नेगेटिव के कितने थे, डाउन के साथ ही 4 थे, अप के साथ क्या था 0, राइट। तो नेगेटिव हमने पॉजिटिव के लिए यहाँ निकाला, ऐसे ही हम नेगेटिव के लिए भी निकालेंगे, सेम प्रोसेस फ्लो। तो वी चेक एट दैट टाइम कि नेगेटिव एंड अप हमारे पास एक भी इंस्टांस नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 0। जब नेगेटिव अप था हमने क्या चेक किया 4, क्योंकि टोटल नेगेटिव के इंस्टांसेस कितने 4 आउट ऑफ 10, तो टोटल नेगेटिव एंड द रिटर्न इज डाउन 4/4। ये चीज क्लियर हुई? एंड देन वी आर अगेन पुटिंग दैट इनटू द फॉर्मूला, सो 1 - समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 का 0 इट विल बी एज इट इज, प्लस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर 4, सो 1 का स्क्वायर वी एड इट, एंड इसको हम किस में से माइनस कर देंगे, विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम -1। तो क्या आ गया यहाँ पे, वी इवेंचुअली लैंडेड अप एट 0। इज दिस क्लियर हाउ दिस 0 हैज कम अप? This is only for negative. This is only for negative. Negative for both up and up, return was up and return was down. This is for positive when return was up and both down. तो हमारे पास सिर्फ हमारे पास ट्रेंड में दो यूनिक इंस्टांसेस थे ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आर वी अब हमारा ट्रेंड कॉलम क्या हो गया, पूरा कैप्चर हो गया। सिमिलरली जैसे हमने ट्रेंड कॉलम को कैप्चर किया, सिमिलरली विल बी कैप्चरिंग, हमारे पास दो कॉलम कौन कौन से थे, ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में भी हाई लो था, ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी हाई लो था। तो इसी तरह से ट्रेडिंग वॉल्यूम में हाई के साथ योर रिटर्न अप एंड रिटर्न डाउन विल बी कैलकुलेटेड। ट्रेडिंग वॉल्यूम में ही योर वॉल्यूम लो में योर अप रिटर्न अप एंड रिटर्न डाउन विल बी कैलकुलेटेड। जो रिटर्न डाउन है इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर ट्रेडिंग वॉल्यूम। सेम प्रोसेस विल हैपन फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो। इंटरेस्ट में भी आपका हाई लो था, हाई में भी व्हेन रिटर्न वाज अप एंड रिटर्न वाज डाउन, एंड ओपन इंटरेस्ट जब आपका लो था उसके साथ भी व्हेन द रिटर्न वाज अप एंड व्हेन द रिटर्न वाज डाउन। प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होंगी, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होंगी, वापस इस जीनी वाले फॉर्मूले में पुट अप हो जाएंगे स्क्वायर करके, एंड देन यू गेट द आंसर। आर यू एबल टू रिलेटेड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? कोई क्वेश्चन किसी का? So what have we gotten here?
ठीक है, व्हाट हैव वी गॉटन हियर? पॉजिटिव ट्रेंड के साथ दो यूनिक इंस्टांसेस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने उनका टारगेट के साथ कैलकुलेट किया, पॉजिटिव के साथ 0.45 आया, नेगेटिव के साथ क्या आया 0। लेकिन क्योंकि क्या है, दोनों एक फीचर को बिलोंग करते हैं, एक ही फीचर है, although having two unique instances, लेकिन I cannot proceed with two values because this is one complete column, right? तो इसमें हम क्या करेंगे, this is the weighted method। तो जब मेरा पॉजिटिव ट्रेंड, पॉजिटिव के साथ 0.45 वैल्यू आई, एंड व्हाट वाज द टोटल काउंट ऑफ पॉजिटिव 6/10। तो क्योंकि अभी दो यूनिक बाइफिकेशंस है, लेकिन मुझे क्या एक फीचर, आई कैन नॉट सेग्रीगेट, अगर मेरे पास 5 कैटेगरी तो मैं 5 नए कॉलम नहीं बना सकती, राइट? क्योंकि ट्रेंड में ट्रेंड का हर रिस्पेक्टिव, ऑल दो मिलके क्या बनाते, दे मेक अप ट्रेंड। सो आई नीड टू हैव वन सिंगल वैल्यू ऑफ जीनी फॉर ट्रेंड, क्योंकि रूट नोड ऐसा तो है ना कि पॉजिटिव मेरा रूट नोड बन गया और नेगेटिव आगे फर्दर स्प्लिट हो गया। दिस विल नॉट हैपन, राइट? आइदर रूट नोड विल बी पॉजिटिव ट्रेंड, आपका एक फीचर ही तो रूट नोड बनेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? योर रूट नोड विल बी ऑलवेज अ फीचर, उसकी सब कैटेगरीज विल नॉट बी द रूट नोड्स, करेक्ट? तो इस वजह से, क्योंकि अब मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव आया, आई हैव द इंडिविजुअल जीनी वैल्यूज, क्योंकि इंडिविजुअल जीनी वैल्यूज कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, आई नीड टू हैव वन वैल्यू एज अ होल। तो हम क्या करेंगे, जब हमने इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट की यहाँ पे, आई विल क्लब देम टुगेदर इन वन सिंगल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 6/10 पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विद द जीनी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव। सो दिस इज 6/10 मल्टीप्लाइड विद 0.45। तो ये क्या हो गया, जीनी वैल्यू फॉर पॉजिटिव टोटल। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 4/10, एंड व्हाट वाज द जीनी वैल्यू ऑफ 0? सो 4/10 इंटू व्हाट, 0। तो ये 6/10 इंटू 0.45 हो गया, 6/10 into 0.45, and this gets multiplied by 0। तो ये सेकेंड पॉइंट कम्स आउट टू बी 0, ये तो 0 ही हो गया सेकेंड वाला जो नेगेटिव वाला था। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस वन। तो इसका जो कंप्यूटेशन हो गया है, दैट कम्स आउट टू बी माई जीनी वैल्यू। अगर ये 0 नहीं होता, लेट्स से इट वुड हैव बीन समथिंग एल्स, लेट्स से यहाँ पे 2 होता, then 4/10 into 2 would have been my answer। let's say if the Gini value would have been 2 या 0.2 या कुछ भी, then इन दोनों का जो कंप्यूटेशन होके आता, that would be my total Gini value for what, my total trend column। अब ये दो इंडिविजुअल, हमने पहले इंडिविजुअल कैलकुलेट की, देन उनकी प्रोबेबिलिटी से उनको मल्टीप्लाई करके वी केम अप विद वन Gini value for a particular node, that is trend वाली node। It is clear हुई how did we get this Gini value for one positive trend column, one trend column which was having two category। अगर लेट्स से इसमें मेरे पास 5 कैटेगरी होती, ट्रेंड में 5 कैटेगरी होती, तो पांचों कैटेगरी में पॉजिटिव, नेगेटिव, मे बी न्यूट्रल, मे बी हाई, मे बी लो, कुछ भी होता, रिस्पेक्टिव टू टारगेट, your probabilities would have been calculated for all these 5 categories, and they would have been put up into this formula of 1 minus sum of all the probabilities। उसके बाद we will have to calculate the weighted sum as well, क्योंकि 5 probabilities individual नहीं ले सकते, they all belong to this one trend family, so they will all have to come up together। तो उनको एक साथ लेके आने के लिए you have to multiply with them their original distribution, Gini value multiplied with their original distribution, then you get the weighted sum of that particular column। Are you all on the same point? ठीक है, सिमिलरली यही प्रोसेस फ्लो, इफ दिस प्रोसेस फ्लो इज क्लियर टू यू, तो वही प्रोसेस फ्लो विल बी ऑप्टेड फॉर योर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जैसे यहाँ पे हमारा ट्रेंड के लिए निकाला, सिमिलरली वी विल हैव ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में हमने पहले हाई के लिए निकाला, लो के लिए निकाला, फिर वेटेड सम निकाला, एंड देन वी केम अप विद टोटल वैल्यू ऑफ 0.47। ये जो प्रोसेस फ्लो है, सेम प्रोसेस flow will happen for open interest, same process flow will happen for trading volume as well। तो we got these aggregated value, जैसे यहाँ पे 0.27 aggregated value आई ट्रेडिंग की, same values will get in here। ठीक है, तो यहाँ पे what is the, so what comes out to be, assume कि हमारे पास सिर्फ 3 फीचर थे यहाँ पे, we were having these only 3 features, 4th तो हमारा टारगेट था। so one feature was what, one feature was your past trend, another feature was your open interest, another was your trading volume। हमने तीनों की जीनी वैल्यू निकाली है, so what will be the root node now? What will be the root node here in this case? You've gotten, अगर ये process में कोई confusion है तो you can ask me। If it is clear, then what will be my root node now?
You have gotten the Gini values. Komal says open interest, which is having 0.47. Akash says past trend, which is having 0.27. And we are having a tie. Past trend, 2 votes. Anshul, what about others? Past trend. What about others? Please, I want answer. अगर आपको ये process समझ में आए तो tell me what will be my root node now. अगर आपको Gini का concept clear है, what Gini value is, now what will be my root node? हमारे पास 3 कॉलम थे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तीनों की हमने Gini value निकाली. Past trend, one more. Akash Saroha, what is your answer, Akash? Hardik, what is your answer? Okay, Hardik is not here. Prem, Saurabh, Anshul. So what are हमारा क्या criteria होता था? What do we go for? Minimum value of Gini? Minimum value of Gini? Minimum value of Gini मतलब maximum आपका क्या है? Maximum classified cases, maximum correct classification, अच्छा output है. तो minimum value Gini किसका है? इसका. So that will come out to be your root node here. Now past trend is identified as your root node. Past trend की हमारे पास 2 categories थी. So one node will be my positive. One node नहीं दिखेगी आपको यहाँ पे, मतलब एक साइड आपका पॉजिटिव का बाइफिकेशन होगा, एक साइड आपका किसका बाइफिकेशन होगा? नेगेटिव का. Is this clear how your past trend column has came out to be your root node? Once your root node is identified, अब इसको हम इस पे आगे टोटल जीनी वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने क्या कर दिया? फाइनलाइज कर दिया. दिस इज फाइनलाइज्ड. ये एक जगह फ्रीज हो गई है. अब हमारे पास 2 चीज क्या बच गई? ओपन इंटरेस्ट एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम. अब सेम प्रोसेस फ्लो कैलकुलेट होगा फिर से. रिपीटेड, इट इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस. जैसे यहाँ पे हमने जीनी निकाला पास्ट ट्रेंड में पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न. अब सेम प्रोसेस फ्लो विद रिस्पेक्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम भी निकलेगा, लेकिन उसमें एक चीज क्या एड अप हो जाएगी? व्हाट विल बी एडेड अप नाउ? क्योंकि एज आई टोल्ड यू डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं? रूल्स बनाते हैं. अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपका ओपन इंटरेस्ट क्या आएगा? तो नाउ अलॉन्ग विद ओपन इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा कि ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव, ओपन इंटरेस्ट हाई, ओपन इंटरेस्ट हाई, उसमें आपका रिटर्न क्या है? अप, रिटर्न क्या है? डाउन. विद पॉजिटिव ट्रेंड आपका ओपन इंटरेस्ट क्या है? लो, विद रिटर्न अप, विद रिटर्न डाउन. तो आपकी फर्दर बाइफिकेशन. सिमिलरली आपका ट्रेंड नेगेटिव भी है, तो व्हेन योर ट्रेंड इज नेगेटिव, योर ओपन इंटरेस्ट इज हाई. हाई में फिर से वही चीज, रिटर्न इज अप, रिटर्न इज डाउन. ठीक है, पहले लेट मी कंप्लीट आकाश. व्हेन रिटर्न इज नेगेटिव, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ट्रेंड कॉलम, जो आपका रूट नोड की चाइल्ड टाइप ये हुए ना, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो व्हेन योर रिटर्न इज नेगेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन इंटरेस्ट नाउ. व्हेन रिटर्न इज नेगेटिव, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट एक टाइम पे लो भी होगा. सो विद लो, व्हेन योर रिटर्न इज अप एंड व्हेन योर रिटर्न इज डाउन, तो यू विल हैव दीज कैलकुलेशंस अगेन. तो अभी हमारे पास सिर्फ क्या था? हम एक सिर्फ रिटर्न को कंसिडर कर रहे थे क्योंकि टारगेट था, क्योंकि अब मेरा ट्रेंड नोड भी फ्रीज हो गया है. सो अलोंग विद माय रिटर्न आई विल बी आल्सो टेकिंग फर्स्ट ट्रेंड एक टाइम पे एंड एक टाइम पे नेगेटिव ट्रेंड आल्सो. क्लियर? इज इट क्लियर या नहीं समझ में आया? जैसे इफ आई टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड इन हियर, इफ आई टेक यू, सो एज आई टोल्ड यू ट्रेंड में आपकी 2 बाइफिकेशंस थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो हम सिर्फ क्या, व्हाट दिस एल्गोरिथम विल डू, इट विल टेक पॉजिटिव्स ऑल टुगेदर. पॉजिटिव को लिया, ओपन इंटरेस्ट, ट्रेडिंग वॉल्यूम. अब नाउ विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव ट्रेंड, सो आपका ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव. विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव ट्रेंड यू हैव 2 वैल्यूज, यू हैव लो, सो लो में यू विल हैव योर रिटर्न अप, लो में यू विल हैव योर रिटर्न डाउन. अब आपकी ये चीज फ्रीज हो गई है, योर दिस थिंग इज फ्रीज, यू विल ऑलवेज हैव दिस. With respect to high, you will have your positive return up and you will have your return down. अब फिर से इनकी जीनी वैल्यू कैलकुलेट होंगी, अब फिर से इनकी जीनी वैल्यू कैलकुलेट होगी, और जिसकी जीनी वैल्यू सबसे क्या होगी? मिनिमम. अब जिसकी वैल्यू जीनी वैल्यू, लेट्स से इस कॉलम की जीनी वैल्यू मिनिमम आई, तो ओपन इंटरेस्ट विल बी योर सेकंड स्प्लिटिंग नोड. पहली स्प्लिटिंग नोड क्या थी? पॉजिटिव के लिए. ऐसे ही नेगेटिव के लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपको 2 डायरेक्शन में लेके जाता है.
पॉजिटिव, लेट्स से दिस इज योर, एक सेकेंड, दिस इज योर नोड, पॉजिटिव आपको यहाँ ले गया, नेगेटिव यहाँ ले गया, लेकिन यहाँ पे भी आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम का आइडेंटिफाई होगा ना कि कहाँ जाना है, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ फ्रीज हो गया, फर्दर इट विल बाइफिकेट हियर आल्सो। तो जहां पे इट विल हैव द मिनिमम जीनी वैल्यू इधर विद पॉजिटिव इधर विद नेगेटिव, तो इट विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव ट्रेंड ओनली एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे माई ट्रेंड इज पॉजिटिव, ओपन इंटरेस्ट हाई लो की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाली, जैसे हमने इनिशियली ट्रेंड और जो हमारे फीचर्स थे बिफोर फाइनलाइजिंग द रूट नोड, सेम प्रोसेस, पॉजिटिव ट्रेंड, ओपन इंटरेस्ट, हाई एंड लो, हाई एंड लो। अब यहाँ पे से ये चीज फ्रीज है, ओपन इंटरेस्ट हाई रिटर्न अप, ओपन इंटरेस्ट हाई रिटर्न डाउन, लेकिन अब यहाँ पे यू आर ऑल्सो टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, नो यू आर नॉट इग्नोरिंग इट। आप सिर्फ ये तभी ले रहे, क्योंकि सिक्स इंस्टांसेस का मतलब क्या है, ओनली पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव के लिए क्या, नेगेटिव के लिए किए तो क्या आ जाएगा, डिविजिबिलिटी में व्हाट विल कम इनटू द नेगेटिव हियर, ओपन इंटरेस्ट हाई एंड लो की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, व्हेन इट विल बी रिटर्न, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, बाय 4। अभी क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड हम ले रहे तो डिनोमिनेटर में क्या है 6, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव के कितने इंस्टांसेस थे ओरिजिनल डेटा में, 6 थे, टोटल कितने थे 10 ना, उसमें पॉजिटिव 6 थे और नेगेटिव कितने थे 4। तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव का निकाल रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में यू आर हैविंग 6 एवरीवेयर, यू आर हैविंग 6 एवरीवेयर, यू सी। लेकिन जब आप नेगेटिव के लिए निकालोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होके इट विल कम आउट टू बी लेस, आई डोंट नो व्हाट विल बी नॉन टू द न्यूमरेटर पार्ट, लेकिन डिनोमिनेटर में इट विल बी 4 एवरीवेयर, तो आपकी प्रोबेबिलिटी स्कोर चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो प्रोबेबिलिटी स्कोर चेंज होगा, तो जब आप वेटेड सम निकालोगे, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/4 4/4 इनटू द रिस्पेक्टिव जीनी वैल्यू, वो चीज भी चेंज होगी, एंड देन योर जीनी वैल्यू विल आल्सो बी चेंजिंग। तो हर बार जब भी आपकी एक रूट नोड फाइनलाइज हो जाएगी, आपकी हर बार जीनी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ चीजें फ्रीज करते जा रहे हो। आपने ये फ्रीज किया, लेट्स से फर्दर बाइफिकेशन की, देन आपकी दो चीजें फ्रीज हो गई, आपका ट्रेंड फ्रीज हो गया था, आपका पॉजिटिव फ्रीज हो गया, लेट्स से यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट हाई फ्रीज हो गया, नाउ यू आर लेफ्ट विद सम फ्यू फीचर्स ओनली, तो रिस्पेक्टिवली योर जीनी वैल्यू विल ऑलवेज चेंज, एंड जहां पे भी आपकी जीनी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, सेम प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग जब तक यू डोंट हैव एनी फीचर्स टू आइटरेट अपॉन। तो जब भी आपका मिनिमम होगा, जब मैंने आपको ट्री दिखाया था लास्ट क्लास में, वेयर द जीनी वैल्यू वाज 0, दैट वाज व्हाट, आवर लीफ नोड, राइट, वहां पे हमारा ट्री का आउटपुट आ गया था। तो वेयर द जीनी वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, इट मींस यू हैव रीच्ड द आंसर। सो दिस इज द प्रोसेस फ्लो। व्हाट हैपेंस कि आपकी अगर 15 फीचर्स है, 15 फीचर में 5 कैटेगरी है, तो पांचों के लिए और एल्गोरिथम विल परफॉर्म द सेम स्टेप, ओके। दिस इज नेक्स्ट इज एंट्रोपी, बट या दिस इज द प्रोसेस फ्लो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया, वही प्रोसेस फ्लो, जिन्हीं रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की, उनको फॉर्मूले में पुट अप किया। फॉर हाई यहाँ पे हमने लिया है हाई को, और यहाँ पे लिया है रिटर्न लो को, रिस्पेक्टिव जीनी स्कोर किया, वेटेड निकाला, मल्टीप्लाई किया, जीनी वैल्यू कम्स आउट टू बी फॉर ओपन इंटरेस्ट है 0.33, जीनी वैल्यू फॉर ट्रेडिंग वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, ऑल्दो 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इट इज एग्जाम्पल में यहाँ पे 0 है, क्योंकि एग्जाम्पल की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 जब भी आएगा जब यू गेट द टारगेट, ठीक है। तो लेट्स से इफ इट इज 0.2, तो आपका मिनिमम क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग वैल्यू विल कम आउट टू बी योर मिनिमम जीनी इंडेक्स नाउ। तो पहला आपका ट्रेंड पे बाइफिकेशन हो गया, and then your next bifurcation is on to what, trading volume, ठीक है। So this comes out to be your second splitting node. So this way your tree will keep on splitting until and unless you don't have any nodes to split upon. Clear everyone? Any questions to ask? How this genie is working? ठीक है, तो tomorrow we'll take for entropy. आज के लिए जीनी किया, tomorrow we'll take for entropy and then we'll discuss the code as well. Just go through it. If you have any confusion, ask me. But this is the process flow, and this is an iterative process. After every step, this complete process will be iterated. अगर आपके पास 10 फीचर है तो 10 के लिए भी होगा, 15 फीचर है 15 के लिए होगा, 30 है तो 30 के लिए भी होगा। तो डिपेंड, तभी आपका एल्गोरिथम थोड़ा टाइम लेता है, सो बिकॉज ऑफ इट टेक्स ऑल दीज कैलकुलेशंस इनटू द बैक एंड, ठीक है।
If you have any questions to ask, please ask me. Otherwise, then हम class wind up करते हैं and we'll take it tomorrow. In any reset where we don't know target, can we? हाँ जी, जहाँ पे ये नहीं knowing, there is a difference between not knowing the target and data not having the target. Ideally, Anusha, we scenario कभी होगा नहीं कि into realistic one you will always know the problem statement. Problem statement आपको हमेशा पता होगी कि करना क्या है. अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में टारगेट बताया गया है तो दैट इज सुपरवाइज्ड, तो आप क्लस्टरिंग नहीं लगाओगे. और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने इनसाइड फाइंड आउट करना, देयर इज नो टारगेट गिवन, तो इट विल डेफिनेटली अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग. यू विल यूज क्लस्टरिंग एट दैट पॉइंट. ठीक है. ओके अनुषा. In cab ride clustering में that depends वो in what perspective you want to, maybe you want to find out कि basis on the distance, miles and the city, लेकिन उसमें फिर आपने ना डमी बनाने पड़ेंगे maybe on the duration, time duration, but then वो prediction नहीं होगा. That will be you want to you're finding out the cluster. जैसे हमने उसमें फाइंड आउट किया था अच्छे कस्टमर कौन से है, तो मे बी कि 10 बजे अगर टाइमिंग्स के साथ यू कैन गो फॉर द माइल्स और द स्पीड पार्ट, देन यू गेट द क्लस्टर्स की किस रेंज में व्हाट आर द सिमिलर डेटा पॉइंट्स, या कौन सी सिटीज में सिमिलर बिहेवियर शो होता है. या इट कैन हैपन. ठीक है. ओके देन, सो थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए, एंड we'll meet tomorrow again and we'll continue with entropy. Okay. Yeah, it depends what we want to find. Yeah. Okay. So thank you so much, everyone, and have a good day. See you tomorrow. Thank you.